So, good evening and welcome to this webinar on emerging fixed income products. So, friends, you would agree that over the last 1 year, debt funds have delivered less than FD returns. So, if debt experts have to be believed, this situation for continue this year as well. So, in such a scenario, many MFDs, many of you would be exploring other fixed income products for client that can at least beat inflation and beat FD returns. So, in this context, we have with us Saurav Ghosh, co-founder Giraffe. Saurav has over a decade of experience in corporate finance in the infrastructure and real estate sector. Over the last decade, Saurav has managed transactions of more than $1.5 billion across capital stake, including structured credit, vanilla debt, and equity. Saurav is an alumnus of IIM Ahmedabad, and he has graduated from BITS Pilani. So welcome, Saurav. Thank you, Rishabh. Thank you, and I'm happy to be here. Thank you for organizing this session for us and for everyone who's come here to participate. Great. So, Saurav, we would first like to understand about the Giraffe. So, could you take us through the journey of Giraffe? How did it all start, and what's the objective of Giraffe? Yes. So Nishant, this is back, in COVID times, right? So in the year 2020, 2021. So we saw, there was a lot of volatility in the stock markets, in the initial phase, and then obviously then it had a good period, and then it started becoming volatile every time there was COVID first wave, second wave, third wave. So we could see that volatility. So so back in 1 year back, so I have another co-founder with me, Vineet Agarwal. So we both were, discussing, and we were thinking, we need more stable instruments, especially if we are looking to participate for short-term opportunities. And, such instruments was not there in the market, which was giving decent enough yield. So, my money, which was not in equities, was lying in my savings account, or I had done some fixed deposit because I did not find any other avenue to invest. And I thought the market is too volatile. So this is what, got us thinking. And then we came up with what, Giraffe is today. So me and both my co-founder, we are both corporate finance professionals. He was a banker. I've been raising capital all my life. So, we had the relevant understanding of the sector and of the industry. And, we thought, about Giraffe, and that's how we started. So just going back as to, what is Giraffe trying to address. So see, इंडिया में as individuals हमारे पास 3 या 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है. So हम लोग either equities में डालते हैं, या हमारे पास फिर हमें अगर लो रिस्क लेना है तो हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स में पैसे डालते हैं, या tangible assets like real estate and gold. अभी हमें सबको पता है कि equities is a great option अगर हमें पैसे 3 या 5 साल से ऊपर इन्वेस्ट करना है. So from a long term perspective, long term के लिए हम सबको equities पसंद है, and I personally would recommend कि equity is a great option because over a period of time, अगर volatility नहीं देखो तो equities में returns अच्छी मिलती है, stable asset class है, and which has been proven over the last 20 years, 30 years in India. So we ourselves, even in Giraffe, अगर कोई हमें आके पूछे हमें 5 साल से ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है, हमें क्या करनी चाहिए, हम खुद भी जाके बोलेंगे प्लीज आप equities में डालो, इंडिया में एसेट क्लास अच्छी है, इंडिया is a growing country and you should see good return in equity markets. Now the question is कि अगर हमें वो उतना टाइप का होराइजन नहीं है, लेट्स से हमें गाड़ी खरीदनी है, हमें अपने बेटे या बेटी का एजुकेशन है या मैरिज है, कोई भी इवेंट के लिए पैसे चाहिए, मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे को उतनी कॉर्पस नहीं है कि मैं उतना लॉन्ग टर्म होराइजन तक सोच पाऊं. So in that case अगर मेरे को शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए पैसे चाहिए, इन्वेस्ट करने हैं below 5 years, in India the only option then is your fixed deposits or your short term some debt paper जो आपको मिलेंगे, या debt mutual fund, liquid fund, etc. अब आउटसाइड ऑफ इक्विटी मार्केट ये जो डेट फंड है और जो फिक्स डिपॉजिट स्पेस है, या हाई रेटेड डेट पेपर है, यहाँ पे रिटर्न्स मिलती नहीं है. आज आपको पता है रिटर्न्स इज बिलो 7% इन एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स.
देन द हमारे लिए जो कॉन्वेंट्रम है यही है कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म करनी है तो चलो इक्विटी ठीक है, बट शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी मेरे लिए ठीक नहीं है, बहुत वॉलेटाइल है, तो मैं शायद लॉस भी बनाऊं अगर मैं 3 साल का होराइजन हूं तो। और अगर मेरे को फिर इक्विटी में नहीं डालनी है तो फिर मेरा रिटर्न तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा है। सो देन इफ आई हैव टू इन्वेस्ट माई मनी फॉर 3-4 years, मैं बेसिकली एक नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न पे मेरे को मेरे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे, एंड दैट इज व्हाट वाज द जेनेसिस ऑफ जिराफ। तो यही सोच के ऊपर जिराफ बना हुआ है, एंड हम लोग ये स्पेस को एड्रेस कर रहे हैं बिटवीन पब्लिक इक्विटी मार्केट जो आपके स्टॉक मार्केट्स है एंड योर फिक्स डिपॉजिट और हाई एंड पेपर। इन दोनों के बीच में एक बड़ा गैप है जो इंडिया में आज प्रोडक्ट्स नहीं है, and to make a better portfolio for a good or effective portfolio planning, efficient portfolio planning, these products should be a part of your portfolio. So again I will repeat, मैं किसी को नहीं बताता हूँ कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप फिर डेफिनेटली एक्विटीज कीजिए, बट अगर शॉर्ट टर्म व्यू है, a part of your portfolio should be in alternate and these high fixed income assets, ताकि आपका पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी, मार्केट वॉलेटिलिटी से इम्पैक्ट ना हो, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बेटर रिटर्न्स अर्न कर सके, सो यू मेक अ बेटर पोर्टफोलियो। सो ऑल आर प्रोडक्ट्स निशांत ऑन आवर प्लेटफॉर्म जिराफ पे, they are between 30 days in tenure and 3 years. We don't do any product which is beyond 3 years and will give you a return between 10% and 20%. So हमारा बास्केट बड़ा क्लियर है, हम बहुत फोकस्ड है, हम जानते हैं कि ये सेगमेंट अनएड्रेस्ड है। So 10 to 20% returns 30 days से 3 years in tenure, हमारे सारे प्रोडक्ट्स ये कैटेगरी, right? So this is the product category that we cater to. ठीक है, आपने और एक क्वेश्चन पूछा अभी तक हमारा जर्नी कैसा रहा, so I'm just coming to that question. So July 2021 में विनीत and I got together with, and हमें फिर तभी आइडिया आई थी, फिर हम September 10th 2021 basically was the launch of Giraffe, जब हमारा प्लेटफॉर्म लाइव हुआ, एंड सो अभी 6 या 7 महीने हो चुके हैं since our launch. As on today हमने 130 crores की AUM करी हुई है, we have done transactions on our platform of more than 160 crores, almost more than 30 crores we have returned money or capital to investors through principal or interest or income. So we have almost 4,500 investors registered, and almost 35 channel partners and advisors working with us. So in the last 6-7 months, this is the journey that we have had. At the same time, we are a startup, so India में हम लोग एक as a growing startup ecosystem, we are a part of it. So हम अपने आप को एक fintech startup बताते हैं. So as a fintech startup, we have raised capital. So हमारे and capital means we have raised equity. So we have a lot of equity investors, and some of the equity investors are the well-known entrepreneurs in India. So founder of Farmeasy, founder of this space, founder of MedLife, etc. are are investors on our platform, are investors in Giraffe. So ये हमारा investor category है, 6-7 months है, but I think we have shown good traction, and we are trying to be the credible, transparent platform for investors and partners. ओके, सो सौरभ, आपने बताया कि जो आप फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं जो कि बहुत ही हाई रिटर्न दे रहे हैं, 10 to 20%, तो इनफैक्ट इक्विटी का भी मुश्किल से आता है, तो आप बताइए इसके बारे में कि ये क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रेगुलेटेड है नहीं है, क्या चीज है? यस, तो मैं आपको बताता हूँ ये हम कर कैसे पा रहे हैं, राइट? तो एक साइड पे जैसे बताया हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब प्रोडक्ट्स लिस्ट होती है दोस्त, और वो लिस्टेड प्रोडक्ट में फिर आप, मैं एंड अदर इंडिविजुअल्स आर एबल टू पार्टिसिपेट, राइट? सो आप आके इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ दूसरी साइड पे आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, राइट? सो हम ऑन द अदर साइड हम जो क्या करते हैं कि हम कंपनीज के साथ काम करते हैं। दीज कंपनीज कैन बी ट्रेडिशनल, ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं या दूसरे स्टार्टअप्स हो सकते हैं। हम इन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के साथ काम करते हैं, इनको हम एक फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल सोल्यूशन देते हैं, एंड वर्किंग मतलब उनको अपने बिजनेस चलाने के लिए तरह तरह का कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। तो हम उस कैपिटल रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हैं और उसका एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड दैट प्रोडक्ट फिर हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि उसमें इंडिविजुअल्स या रिटेल इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करता है।
सो ऑन वन हैंड हमारे पास है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडिविजुअल्स आप और मैं आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरे एंड पे हमारे प्लेटफॉर्म के है कंपनीज जिसके लिए हम प्रोडक्ट स्ट्रक्चर करते हैं एंड उनको वर्किंग कैपिटल सोल्यूशन देते हैं। सो द टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो हम देते हैं, मैं एक बार एक सेकंड के लिए मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो इट विल So, Nishan, so these are the products जो हम ऑफर कर रहे हैं, राइट? सो एक NCDs, MLDs हो गया, NBFC की, ये आई थिंक सब पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे ये प्रोडक्ट समझते होंगे। सो मोस्ट ऑफ ये प्रोडक्ट्स 8 से 14% होगा, 10 और 12 से 30 महीने पैकेट हम लोग 36 मंथ्स के बाहर करेंगे नहीं। एंड यू नो टिपिकल इन्वेस्टमेंट साइज पे हमने 1 लाख रखा हुआ है। सो ये बेसिकली ये प्रोडक्ट है कि हम एक एनबीएफसी को लोन दे रहे हैं, और वो लोन फिर वो एनबीएफसी अपने वर्किंग कैपिटल या ग्रोथ के लिए यूज कर सकता है, राइट? सो ये रेटेड पेपर्स है, तो हम मार्केट में ये काफी देख चुके हैं। तो आपको मुथूट फाइनेंस का मिलेगा, श्रीराम का मिलेगा, बहुत एमएलडीज मिलते हैं, ये उसी मार्केट में है। बट हम लोग इसमें डिफरेंट क्या करते हैं, हम लोग इसमें वापस थोड़े हाई यील्ड के तरफ है। जैसे हमारा अभी एक करंट अपॉर्चुनिटी लाइव है, जो एक हम नॉर्थ इंडिया बेस्ड एनबीएफसी होम क्रेडिट के साथ काम कर रहे हैं। इट्स अ कंज्यूमर फाइनेंस एनबीएफसी। सो इट्स अ BBB+ रेटेड पेपर, एंड 12% उसकी रिटर्न है फॉर अ 10 और 15 months, एंड आई कम बैक टू इट। सो BBB+ उनके लोगों को लगता है कि हाई रिस्क इज देयर एंड एक्सेट्रा, एंड हम लोग उसमें क्या करते हैं, रिस्क मिटिगेट करने के लिए, आई विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली। देन वी डू अ प्रोडक्ट इनवॉइस डिस्काउंटिंग। Invoice is a RBI recognized instrument. So ये generally 30, 60, 90 days रहेगा, very rarely beyond 90 days जो हमने tenor लिखी है। इसमें वापस मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, एंड यहाँ पे आप 30, 60 या 90 डेज के लिए 10 से 15% के बीच में रिटर्न कमा सकते हो एनुअलाइज्ड। सो लेट्स से अगर 12% रिटर्न है, दैट मींस आप ऑलमोस्ट 1% पर मंथ कमा रहे हो ओवर 30, 60, 90 डेज, राइट? जो हम कॉर्पोरेट डेट बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट डेट एसेंशियली इज कि कोई एक कंपनी है जिसको लोन चाहिए, राइट? और वो हम लोन उसको वैरायटी ऑफ रीजंस के लिए चाहिए, हो सकता है ग्रोथ के लिए, हो सकता है वर्किंग कैपिटल के लिए, हो सकता है किसी भी कारण से हो सकता है। सो हम फिर वो लोन, अगर हमें लगता है कि वो कंपनी क्रेडिबल है और हमारा जो भी रिस्क असेसमेंट से फिर और ड्यू डिलिजेंस से अगर वो पूरा टेस्ट पास करता है, तो फिर हम उनके साथ काम कर सकते हैं। सो टिपिकली ये वापस 6 महीने से 24 महीने के टेन्योर में होंगे, और 12 से 18% yield kind of देता होगा। Then the next product that we have is leasing. This is an interesting product. So why is this interesting? Because ये हमने अभी तक ज्यादा इंडिया में देखी नहीं है। बट इन लीजिंग हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग एक कंपनी को हेल्प करते हैं टू कन्वर्ट देयर कैपिटल एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर इनटू ऑपरेशनल एक्सपेंस और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आज अगर लेट्स से इन्फोसिस को एक डेटा सर्वर खरीदना है, अभी वो डेटा सर्वर का कॉस्ट 1 करोड़ है। नाउ इन्फोसिस के पास ऑप्शन है कि वो 1 करोड़ आज दे, बट डेटा सर्वर उसको यूज ऑब्वियसली होगा ओवर द नेक्स्ट 5-10 years में भी। हम लोग कंपनी को क्या ऑप्शन ऑफर करते हैं कि ये हम लोग ये डेटा सर्वर खरीदते हैं, और ये डेटा सर्वर मैं खरीद के आपको लीज पे देता हूँ, और आप मुझे 3 साल के ओवर पैसा देना। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग 1 करोड़ टुडे, Infosys is able to then give money over 3 years through monthly rental. सो इन्फोसिस क्या फायदा हो कि आज 1 करोड़ देना नहीं पड़ा, सो कैश यूटिलाइजेशन बेटर हुआ, एंड हमें मंथली रेंट के हिसाब से 3 साल के ऊपर पैसे देगा, एंड आफ्टर 3 years वो हमसे डेटा सर्वर बाय बैक कर देगा। तो इस स्ट्रक्चर में इट इज अनदर वर्किंग कैपिटल सोल्यूशन टू अ कंपनी, where instead of putting the money upfront, it got a period of 3 years or 2 years to pay for that asset. So this is what is leasing. हम लोग एक कंपनी या एलएलपी क्रिएट करते हैं, वो एलएलपी में हमारे इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स बनते हैं। उनसे जो कैपिटल फिर इन्फ्यूज होती है कंपनी में, उससे हम एक एसेट खरीदते हैं, और वो एक एसेट को लीज पे देते हैं दूसरी कंपनी को जो उसको यूज करती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years or 3 years हमें मंथली रेंट के हिसाब से रिटर्न्स मिलता है, और 3 साल के बाद वो हमसे एसेट वापस खरीद देगा। एंड ये जो भी मंथली रेंटल प्लस एसेट बायबैक का जो पैसा है, वो हमारे इन्वेस्टर्स को एज रिटर्न्स मिलते हैं, right? So this is a structure again helping a company to convert their upfront expenditures and help them pay over a period of time. The last product जो है यहाँ पे वेंचर डेट या रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस, ये एसेंशियली एक लोन है एक स्टार्टअप को।
इसका अलग नाम वेंचर डेट है और रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस है, बिकॉज द वे हम इसको इवेल्युएट करते हैं काफी डिफरेंट है। मोस्ट स्टार्टअप्स, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में लॉस मेकिंग है, सो इसमें क्रेडिट और रिस्क असेसमेंट बहुत डिफरेंट होता है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज कंपनीज बेटर टू सी कि यू नो व्हाई दे आर क्रेडिट वर्दी, इनको हम क्यों पैसे दे सकते हैं। सो इनकी एनालिसिस, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट बहुत डिफरेंट होती है, एंड बिकॉज स्टार्टअप इकोसिस्टम में आप देखोगे यील्ड इज टिपिकली हाई 15 to 24%, एंड देन टेनोर भी हम लो रखते हैं, राइट। इन सारे 5 प्रोडक्ट में आप एक थीम देखोगे कि कोई भी 36 मंथ्स के ऊपर नहीं है, right? And this is what we are very particular about, that especially we are dealing with fixed income products which are debt type in nature, right? So एक now debt में हम long term view नहीं ले सकते, so हम लोग बहुत क्लियर है कि हम जब एक कंपनी को एनालाइज करते हैं और एक कंपनी को हम स्टडी करते हैं, हमें रीजनेबल क्लैरिटी होना चाहिए कि ये नेक्स्ट 2 साल 3 साल में कैसे परफॉर्म करेगा। नाउ एज सून एज मैं 3 साल से होराइजन के बाहर जाता हूँ, मुझे कंपनी का परफॉर्मेंस एस्टिमेट करने में भी फिर बहुत सारे अजम्पशन देनी पड़ती है। तो हमें पता है फिर रिस्क बढ़ते जाता है और फिर डेट में और फिर उस रिस्क में प्ले करने के लिए मतलब नहीं है। सो लॉन्ग टर्म इक्विटी इज द राइट प्ले, शॉर्ट टर्म डेट इज अ गुड प्ले, एंड हमें लगता है कि हम डेट अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं इन दिस बिलो 3 ईयर टाइम होराइजन। सो सौरभ, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने बताया, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, लीजिंग, तो ये रेगुलेटेड है क्या किसी से? हाँ, तो इसमें 2 चीज है, राइट। सो सी हम लोग एक फिनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सो एज अ फिनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म आज आरबीआई सेबी ने रेगुलेशन नहीं निकाली है, वो निकालेंगे कि हाउ यू शुड ऑपरेट एज अ डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नाउ आज आप सारे नियो बैंक्स देख लो, जुपिटर मनी, ओपन, काफी सारे नियो बैंक्स है, लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है। सो ये सब पे आज अदर देन P2P, जहाँ पे एक NBFC P2P लाइसेंस आई है, अदर देन दैट एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म आरबीआई ने कुछ रेगुलेशन निकाली नहीं है। हाउएवर हम लोग को 100% कंप्लायंट होना है लॉ के साथ। सो हम क्या करते हैं कि wherever there is a regulation, हम उसके साथ कंप्लाई करते हैं, right? And where is the regulation? The regulation is in the at the products. So जब हम जो भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, each प्रोडक्ट के लिए आरबीआई या सेबी का रेगुलेशंस है, which is very clearly laid out, and हम उस रेगुलेशन को 110% फॉलो करते हैं टू द टॉप। सो प्रोडक्ट्स क्या है, जैसे जब मैं ये एनसीडी दे रहा हूँ, कॉर्पोरेट डेट दे रहा हूँ, वेंचर डेट दे रहा हूँ, हम लोग इसको करते हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर्स। सो डिबेंचर इज अ प्रोडक्ट जो आपको डीमैट अकाउंट में दिखेगा, लाइक एनी अदर शेयर सर्टिफिकेट, आपको एक डिबेंचर सर्टिफिकेट आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए सेबी ने क्लियरली गाइडलाइंस ले आउट करी हुई है, एंड हम लोग उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, व्हाटएवर आर द गाइडलाइंस एंड उसके कंप्लायंसेस वी कंप्लाई। सो हम लोग प्रोडक्ट लेवल पे इसको कंप्लाई करते हैं। लीजिंग, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि वी इनकॉर्पोरेट एलएलपी और एसपीवी, जिसमें इन्वेस्टर्स बिकम शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स। Because we are incorporating a LLP or SPV, यहाँ पे the regulation is relevant of RBI, where all the required governances is of Companies Act. So Companies Act बोलती है कि मेरी डीड कैसी होनी चाहिए। कंपनी एक्ट बोलती है कि अगर एसपीवी हुआ तो हमें एजीएम होल्ड करना चाहिए, सिग्नेटरी कौन होगा, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के राइट्स क्या होंगे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देन गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट इन लीजिंग। Similarly, in invoice discounting, I said invoice is a RBI recognized instrument, so उसकी फिर अपनी guidelines हैं, and then we are compliant with that. So while as a digital fintech platform, regulations are not there, and हमें पता है कि अभी अगले 1-2 साल में, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और बूम हो रही है, there will be regulations. As and when those regulations come, हम comply करते रहेंगे, but at the time being, product level regulations are very clear, and we are 100% compliant. In fact, just for everyone out here, मतलब Cyril Amarchand Mangaldas and J Sagar Associates and Ernst & Young EY हमारे advisors हैं, so हम उनके साथ काम करते हैं to ensure that at any point in time, in no way are we in any contravention of law. सौरभ, अभी मेरे को 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो एक राजशेखर जी जानना चाहते हैं कि आर दीज प्रोडक्ट्स, इफ सो by whom? SEBI or RBI? So these are the different instrument, I guess. NCD is regulated by SEBI. SEBI, yes. Right. So I said NCD is regulated by SEBI. So NCDs हम ये NBFC, corporate debt, venture debt, revenue based finance, ये तीनों में हम NCDs use करते हैं, which is non-convertible debentures. So 3 of these products then get regulated by SEBI.
लीजिंग जैसे आई मेंशन कि हम लोग एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करके उसमें शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स बना के फिर ऑपरेटिंग लीज करते हैं, तो दिस इज गवर्न्ड बाय आरबीआई, एंड देन इनवॉइस आल्सो एज अ प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय आरबीआई. So these are the independent bodies governing the products. Okay, Dilip and Vikas, this is not P2P company. This is a high yield fixed income product. Right. So मैं since ये question पूछा है, मैं difference बता देता हूँ. So P2P में क्या होता है? P2P is person to person. You can peer to peer. You know, you can think of it that way, right? So peer to peer lending को P2P कहते हैं. So दोनों जगह में individual lender होता है और एक individual borrower होता है. हमारे केस में लेंडर इंडिविजुअल है, बोरोवर एक कॉर्पोरेट है. तो एक इंडिविजुअल इज इन्वेस्टिंग मनी विद अ कॉर्पोरेट, सो दिस इज नॉट पीयर टू पीयर, एंड सो P2P लेंडिंग इज डिफरेंट. some things which are very different from peer to peer. For example, आप कोई भी P2P प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता नहीं होगा आप किसको पैसे दे रहे हो. आप एक पूल को पैसे देते हो, किसके दे रहे हो आपको पता नहीं होगा, which is a big question mark for us, क्योंकि फिर ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चन आती है. इन आवर केस लाइक आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कौन से कंपनी को पैसे दे रहे हो, किस टर्म्स पे पैसे दे रहे हो, और ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. Okay, so Saurav, so what are the opportunities that these products offer according to you? Right. So I'd say opportunities in 2-3 ways, Nishant. So like I said, first I think the opportunity is कि you earn non-market linked return. So आज हमको पता है वापस इक्विटी, एंड आज ही का एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि रेलेवेंट है, राइट? आप आज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, कोविड हुआ, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, कल ऑयल प्राइसेस बढ़ा, कोई भी मार्केट में इवेंट होता है, आज स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो जाती है. ठीक है. सो अगर आपको अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में पैसा चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन उतना ही है, आप 100% गारंटी नहीं कर सकते कि मैं आज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा और 3 साल या 2 साल के बाद मैं एक प्रॉफिट बना के एग्जिट कर पाऊंगा. बिकॉज फॉर वट एवर रीजन, कल इंडिया में इलेक्शन होंगी, यूएस में इलेक्शन होंगी, कोविड आएगा, कुछ भी मार्केट रिलेटेड इवेंट हुआ, आपका पोर्टफोलियो इम्पैक्ट होने वाला है, एंड देन जो आपको लगा था मैं 2-3 साल बाद पैसे विड्रॉ कर पाऊंगा, दैट मे नॉट बी पॉसिबल, या आपको लॉस में करना पड़ेगा. सो बाय नेचर इक्विटी इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म, जब आपको इमीडिएट नीड ऑफ कैपिटल ना हो. आप ऐसा होना चाहिए कि चलो आज अगले साल कोविड आया, मैं और 10 साल वेट करूंगा, 5 साल वेट करूंगा, बट मेरे को पैसे आज नहीं चाहिए. इक्विटी इज वेरी गुड फॉर दैट. नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट व्हाट इट डज इज कि आपको अगले नेक्स्ट 3 साल का टेन्योर और इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ अगर इन्वेस्ट करनी है, सो दिस प्रोडक्ट देन बिकम्स वेरी गुड. इट हेल्प्स यू ऑन नॉन मार्केट लिंक्ड रिटर्न. while we say कि आपको 5 to 10% of your portfolio, global studies say कि 20% mostly they recommend an alternate investment product, but India में these products are new. SIPs, mutual funds, equities आज mainstream हो गई है. ये सारे products अभी तक काफी exotic है, mainstream नहीं हुई है, which we feel over the next 2 decades हो जाएंगे. So while these are new today, you should start small and maybe allocate starting to 3% to 5% to 10% of your portfolio to these products. It helps in earning non-market linked returns, and it helps in giving that extra boost to your portfolio, because your FDs and high yield debt papers are not able to give that kind of a return. So overall the portfolio will look better when you have these instruments in there. So ये एक opportunity है. दूसरा है कि these are great for predictability and earning a passive income. So इन सारे, क्योंकि ये डेट पेपर्स है, आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको आपका रिटर्न कब मिलने वाले हैं और क्या टाइम होराइजन पे मिलने वाले हैं. सो आपको पता है कि मैं अगर ये 2 साल के एनसीडी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को क्वार्टरली इतना पैसा मिलेगा या मंथली इतना पैसा मिलेगा, और 2 साल में मुझे इतना पैसा वापस मिल जाएगा. सो ये प्रेडिक्टेबिलिटी कैसे हेल्प कर सकती है? आई विल गिव एन एग्जांपल. जैसे लीजिंग, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो अभी लाइव है प्लेटफॉर्म पे. 3 साल में मंथली रेंट मिलता है आपको, तो आपको पता है आपको एग्जैक्टली इतना पैसा मंथ में आने वाला है. सो अगर आपको ईएमआई पेमेंट करना है, आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट करना है, घर का रेंट देना है, आपको आपको आपके पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए अगर मंथली कहीं पे खर्च घर पैसे भेज रहे हो, तो ये जो भी आपके मंथली रिक्वायरमेंट्स है पैसे के, आप बैक टू बैक आपको पता है कि ये प्रोडक्ट का मुझे मंथली पैसा आएगा और मैं ये पैसे को ऐसे यूटिलाइज करूंगा. So ये जो predictability है is a big thing, and it can make your financial planning efficient. Because आज हम क्या करते हैं, अगर हमें पता है कि 30 दिन में पैसा चाहिए, हम उसको
फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं या सेविंग्स बैंक में रखते हैं, बट नाउ यू नो दैट अगर मुझे महीने में 10,000 चाहिए, मैं एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो मुझे महीने में 10,000 दे सके. So it helps in better financial planning. So I feel the two good big things over here, like, and to repeat, non-market linked returns and predictability, which helps you make your financial planning better. So you can utilize all these products in that way. So Saurabh, are these returns indicative or guaranteed? आप क्या So I use the term fixed, Nishant. So not indicative, not guaranteed. So why it is fixed is because if all goes well, you will make this return. You will not make plus or minus, right? So I call it fixed. But why it is not guaranteed? Because like any high yield instrument, या कोई भी आज कोई reward risk के बिना मिलती नहीं है. So the reason this is giving you 15% and not 6% of a fixed deposit is because they carry higher risk than fixed deposit. So what is that high risk is important to understand, right? So हम जैसे बोलते हैं रिस्क को भी मैनेज किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है. So आज आप, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोटक बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, 1 लाख करोड़ AUM पे उनका 1% या 1% से कम का NPA होगा, जो डिलेज होगा उसमें भी रिकवरीज होगी. अभी आप अज्यूम करो कि आपका ऐसा 1% चांस है कि आपका कोई भी ये सब इन्वेस्टमेंट्स में डिफॉल्ट हो सकती है, डिले हो सकती है. सो आप अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करते रहोगे, एंड हमारे लिए डाइवर्सिफिकेशन के बहुत ऑप्शन है, तो आपको अगर 10 लाख डालना है तो आप 1-1 लाख 10 इन्वेस्टमेंट्स में कीजिए, आपका खुद का पोर्टफोलियो बनाइए, एंड देन यू विल एंश्योर कि अगर डिफॉल्ट भी हुई तो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे इम्पैक्ट कम होगा. दूसरा मैं बोलना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट्स में दे आर कोलैटरल बैक्ड या एसेट बैक्ड. सो NCDs, कॉर्पोरेट डेट, लीजिंग, वेंचर डेट, इन ऑल ऑफ दिस केसेस आपके पास कोई ना कोई कोलैटरल है, एसेट है, राइट. सेकंड है कि ये सब कोई ना कोई मंथली पीरियोडिक पेमेंट्स के में पैसे मिलते हैं, तो क्वार्टरली मिलेगा, मंथली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, एनुअली मिलेगा. सो विद टाइम आपका रिस्क एंड एक्सपोजर भी कम होते जाता है, because in a 3-year product you will keep getting money quarterly or annually or in some period. So after 2 years you would have got back 70-80% of the money, right? And ये सब short tenure है. तो हमें जब हम एक बिजनेस इवेल्युएट करते हैं, हमारी क्लैरिटी, विजिबिलिटी बहुत होती है कि वो अगले 1-2 साल में कैसे करेगा, अगले 10 साल बाद वो कैसे करेगा हमारा बोलना बहुत मुश्किल होता है, बट अगले 1-2 साल में कैसे करेगा हम काफी रीजनेबल क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं. तो समराइज, अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे तो आपका रिस्क कम होता है. आप क्योंकि इसमें पीरियोडिक पेमेंट्स मिलता जाता है, एट विथ मोर टाइम आपको आपकी कैपिटल वापस आती जाती है, तो आपका एक्सपोजर कम होते जाता है. तीसरा, मोस्ट ऑफ दीज आर कोलैटरल बैक्ड, तो अगर डिफॉल्ट भी हुआ तो हम कोलैटरल को मोनेटाइज करके, एनफोर्स करके कैपिटल वापस कर सकते हैं. सो वेदर दे कैरी रिस्क, यस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस और डिफॉल्ट? इट इज लो. If there is a default, it is likely कि आपको एटलीस्ट अपना इट नॉट 100-0 गेम, आपको ऑलरेडी कुछ पीरियोडिक पेमेंट से आपको आपका कैपिटल मिल चुका होगा, या ये कोलैटरल एक्सरसाइज करके हम मोनेटाइज करके हम कुछ कैपिटल और लौटा पाएंगे. सो दिस इज द ओवरऑल वे टू लुक एट रिस्क हियर. So apart from credit risk that you have mentioned, so what are the other risks associated with these products? Sure. So 2-3 रिस्क है. So एक तो क्रेडिट रिस्क में बात कर चुका हूँ. दूसरा की रिस्क होती है इसमें लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि ये सब आज बिकॉज एक्सोटिक प्रोडक्ट्स है तो इसकी कोई सेकेंडरी मार्केट है नहीं. Giraffe ourselves will put our best efforts to create a vibrant secondary market over the next 2-3 years, बट इसकी आज सेकेंडरी मार्केट नहीं है. सो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो 12 महीना 15 महीने के पहले, आपको अगर उसके पहले एग्जिट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है. As Giraffe, we are trying to figure out ways कि हम आपको वो लिक्विडिटी ऑप्शन दे, आपको एक सेकेंडरी मार्केट दे कि आपको अगर जरूरत पड़े तो हम एग्जिट दे पाए. एट द मोमेंट वो नहीं है. सो एट द मोमेंट लिक्विडिटी रिस्क इज अ बिग रिस्क. सो अगर आपने जब इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए, आप 2 साल के पहले एग्जिट नहीं कर पाओगे, आप उसी टाइम फ्रेम में एग्जिट करोगे. सो दीज आर द 2 की रिस्क. थर्ड, लाइक एनी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, आज अगर इंटरेस्ट रेट हमको लगता है बढ़ने वाली है तो थोड़ा आपका रियल रिटर्न इन दैट सेंस कम हो सकता है इफ इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज और थिंग लाइक दैट. सो आई वुड से दीज आर द 3 की रिस्क्स, व्हिच इज क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क. So how Giraffe is mitigating these risks? Right. So I'll talk about credit risk extensively because, like I said, liquidity risk पे हम काम कर रहे हैं and interest rate risk is a market factor. So I'll talk about credit risk extensively. So इसमें हम 3-4 चीजें कर रहे हैं. So first is I want to tell people that all opportunities that are on Giraffe are exclusive.
सो हम ये खुद ओरिजिनेट करते हैं, हम कंपनी से मिलते हैं, हम टर्म शीट्स डिस्कस करते हैं, हमें फिर हमारा एक थॉरो क्रेडिट एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होता है, फिर हमारा एक इन्वेस्टमेंट कमिटी है, वो इन्वेस्टमेंट कमिटी बैठती है, हर एक प्रपोजल देखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट कमिटी को फिर ठीक लगे एंड अप्रूव करे, वही फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होता है. सो एज जिराफ एक्चुअली ऑन इंटरनली we behave and act like any MNC bank or a large NBFC. So all our processes are as stringent as a large NBFC or a MNC bank. So हम इन्वेस्टमेंट ओरिजिनेट करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कमिटी फिर उसको रिव्यू करती है, जो पास होते हैं फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हैं, राइट. सो दिस इज द प्रोसेस दैट वी फॉलो. इसमें हम क्रेडिट risk mitigate कैसे करते हैं. First step is a thorough credit and risk assessment framework. So we have a very exhaustive and proprietary risk assessment framework where we understand these products well, and I think we do a very good job. I'll take you through my team as well, right? So other than Vineet and me that I spoke of, Vikas, who's our head of investments, Pratik, head of strategy. Vikas's experiences, he's been 15 years in corporate banking. 9 years he was heading the northern region of Kotak Bank. He's a alumnus of IIM Lucknow, IIT Kharagpur. Pratik was with RBI, Royal Bank of Scotland in Hong Kong, फिर एक private equity, Bravia Capital, फिर एक venture capital fund, One Crowd, and he is also an alumni of IIM Ahmedabad and NIT Surat. So we have a strong team, of corporate finance professionals. We understand these products well. We do a thorough credit and risk assessment, and then we list opportunities on our platform. So that is step one. What are the things that we look at to mitigate risks, right? So one is we have very stringent covenants and we do a very active asset monitoring. सो कॉवेनेंट में हम डॉक्यूमेंट्स क्लियरली अर्ली वार्निंग ट्रिगर्स के लिए हम देखते हैं कि हम 5 या 6 कंडीशंस लिखेंगे कि जो ब्रीच नहीं होनी चाहिए. सो दे एक्ट एज अर्ली वार्निंग ट्रिगर्स फॉर अस, और हम मंथ ऑन मंथ मॉनिटरिंग करते हैं. तो अगर हमें कुछ रेड फ्लैग दिखा, सो वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन अर्ली ऑन, राइट. थर्ड इज दैट वी आर वेरी क्लियर दैट जो भी हम अपॉर्चुनिटी हमारे प्लेटफॉर्म पे लाए, we need to know the promoter, meet the promoter, and have reference checks on the promoter, because promoter quality, pedigree, background is very important. So हमारा जैसे एवरेस्ट मीट और उबर का जो ट्रांजैक्शन है जो अभी लाइव है प्लेटफॉर्म पे, उसमें हमने एक तो उनसे जो एवरेस्ट से बात करी वो करी, हम उबर के इंडिया हेड से मिले, हम उबर के इंडिया हेड से एवरेस्ट के बारे में बैकग्राउंड चेक करें, पता करें कि उबर के सिस्टम में वो एवरेस्ट को कैसे व्यू करते हैं, एक्सेट्रा. So these are some of the things that we do for every transaction, that we list on the platform. And then finally, we work with, I will say, credible and well-known counterparties wherever required, right? With Ernst & Young, I said JSAs, Amachan Mangaldas, best of the names in the industry. कि at least जो हम due diligence कर रहे हैं, third party opinion ले रहे हैं, that is of the highest quality. So I will say it's a combination of these 4 things, and to mitigate credit and risk at least in the system. So Saurabh, do you look at credit ratings as well offered by external agencies? Right. So I'll go back to the product summary here. So जो NCDs, MLDs है जैसे NBFC की, काफी सारे corporate debts की फिर वो rated होती है, right? So now the reason वो rated होती है is because rating agencies understand these products, क्योंकि ये product काफी सालों से इंडिया में है, right? Now because ये products है, rating agency इनको समझते हैं, इसका rating करना आसान होता है और हम फिर इसकी external rating होती है. But products like leasing, venture debt, invoice discounting, these are new exotic products. Invoice discounting though is an old product, taken the way we deal with invoice discounting as a digital platform, opening it up for individuals, it's a new structure for credit rating agencies. And rating agencies rely on data. So उनके पास लास्ट 20 साल का अगर डेटा हुआ, उस बेसिस पे वो अपने क्रेडिट मॉडल्स बनाते हैं, जिसके बेसिस पे वो एक रेटिंग देते हैं. So because these products are new and they don't have a large history in India, rating agencies themselves don't have enough data to rate. So external rating agencies don't give rating for products like invoice discounting, leasing, or venture debt today. For some of the products like the NCDs and corporate debt, there is a rating. So in fact, what we are trying to do as Giraffe is we are trying to come up with a Giraffe score, which is our own internal rating and a risk assessment metric
which will tell all our users where we perceive the risk versus reward for the opportunity. So that is an internal exercise that Giraffe is doing, and hopefully in the next 1 or 2 months we'll be able to launch it. But as I mentioned कि Giraffe Core is something that we are working on. Rating जहाँ पे है हम उसको display करेंगे, publish करेंगे, जहाँ पे possible है हम देंगे, वरना like I said कि rating agency इनको rate नहीं करेगी. सौरभ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग पहले. हाँ, sure. So मंदार कदम, how is risk mitigated, तो ये तो हो गया है. Yes. Dinesh Manek wants to understand safety, liquidity and returns perspective. Right. So I'll quickly repeat. So safety, जैसे मैंने बताया कि all these high income and high yield assets come with some risk. So risk समझना जरूरी है. We as Giraffe, we want to be the most transparent platform out there. So हम लोग all documents we will provide. We will have one-on-one conversations to explain risks to our customers and our partners. So आप risk समझिए. Right, and risk mitigate करने के 2-3 तरीके which I said. एक है diversification, second है कि all assets are mostly collateral backed and asset backed, तो उसमें आपकी risk कम होती है. But at the same time अगर default हुए, delays हो सकते हैं, अगर वो हुए तो आपको diversified portfolio पे impact कम होगा. And most likely like I said कि because collateral backed है, कुछ आपको पैसे मिल चुके होंगे, so you will mostly recover maybe 50, 60, 80% of your capital and while the balance is tough. So you should look at these opportunities in this way. सारे opportunities का portfolio बनाना is the way to go and not take an exposure on one single opportunity. So that is the way to look at safety. Liquidity like I said कि ये fixed tenor instruments है. So आप जब invest करोगे तो आपको hold करना पड़ेगा maturity तक. बीच में liquidate करना आज के तारीख में option नहीं है. अगर while Giraffe इस पे वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, hopefully in the next 6 months हम कुछ एक liquidity option provide कर पाएंगे. तीसरा क्या था निशांत? हो गया. यू हैव रिटर्न्स का तो आपने बता दिया है. राजशेखर हवलदार वांट्स टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, है ना, आप सारे इंस्ट्रूमेंट को लेके एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट्स रेगुलेटेड है कि नहीं. तो ये सारे प्रोडक्ट शायद आपने बताया कि रेगुलेटेड है ज्यादातर. एब्सोल्युटली. हम कोई अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट नहीं करते. तो ऑल जो हम प्रोडक्ट्स करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, वो सारे आरबीआई सेबी रेगुलेटेड है. हमें अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में जाना ही नहीं है, बिकॉज हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. हम कुछ कल इट्स एवरीथिंग इज इन द ओपन. तो सबको पता है हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अस डूइंग अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट. वो सस्टेनेबल नहीं है. So every product that we do is 100% regulated by RBI or SEBI. The second part of this question is that what are the risks that they should make their investor aware of? Sure. So two things. Again, I think हम तो एक है कि risk जो opportunity की risk है, दूसरी liquidity risk, both they should be aware of. Mitigation बताना जरूर है कि आप diversify करो. Right, and in risks I think the first thing most critical इसमें रहती है कि you should look at आप किस काउंटर पार्टी के साथ डील कर रहे हो एंड आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं. फॉर एग्जांपल मैं आपको वापस बता रहा हूँ, वेंचर डेट, राइट, 15 to 24% प्रोडक्ट दे रही है बिकॉज वो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए केटर कर रही है. आपको अगर वो रिस्क कैपिटाइट है और आपको रिटर्न अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप उसमें जाइए. बट अगर आपको लग रहा है कि एक वेंचर डेट डील जो 20% रिटर्न दे रही है इज बेटर देन अ कॉर्पोरेट डेट डील जो 12% दे रही है, वो नहीं हो सकता है. राइट, और एक 20% है और दूसरा 12% है, क्योंकि वो 20% का रिस्क ज्यादा है. वो रिस्क क्यों ज्यादा है? क्योंकि कॉर्पोरेट डेट में हम ट्रेडिशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं जिसके साथ 30 साल का एक हिस्ट्री है, मे बी 100-200 करोड़ का टर्नओवर है, प्रॉफिटेबल है, फाउंड सेकंड थर्ड जनरेशन फैमिली उसको रन कर रही है. कैन बी मेनी रीजंस वेयर उसने अपना क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर लिया. वाइल स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है, कंपनी 2 या 3 साल पुराना होगा, नया होगा, फाउंडर्स यंग होंगे, एक नया मार्केट एस्टैब्लिश करने का ट्राई कर रहा है, लॉस मेकिंग है. सो वाइल उनके पास कैश होगा, इक्विटी फंडेड होगा, बहुत सारे मार्की वीसी नेम्स होंगे, बट बिजनेस मॉडल में ये सब चीज है. सो बिकॉज ऑफ दिस वेंचर डेट का रिटर्न इज 20% एंड कॉर्पोरेट डेट का रिटर्न इज 12-13% बिकॉज रिस्क इज वेरी डिफरेंट. सो आई थिंक जो हम आपके क्लाइंट्स को बताना चाहिए कि रिस्क रिटर्न कम्स विद रिस्क एंड बोथ गो हैंड इन हैंड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट.
बाकी we will be transparent and हम अपने वेबसाइट पे एटलीस्ट की रिस्क फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी बताएंगे, तो प्लीज गो थ्रू दैट एंड और अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो हम होंगे आंसर करने के लिए। Okay. Ashish wants to understand about the credit rating of this product. तो कुछ tentative आपका इसका रेटिंग होता है जैसे AA, BBB? राइट, सो लाइक आई सेड, कुछ प्रोडक्ट्स के होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स के नहीं होंगे, जहाँ पे होते हैं हम बता देंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे एक अपॉर्चुनिटी है होम क्रेडिट एनसीडीज, राइट। सो होम क्रेडिट इज अ 5,500 crore AUM NBFC based in North India, which is into consumer finance. So it's a CRISIL triple B plus rated NBFC, right? So उसमें रेटिंग है। अभी ट्रिपल बी प्लस रिस्की लग सकती है, बट हम उसमें काफी लाइक आई सेड क्रेडिट रिस्क असेसमेंट हमने काफी डिलीजेंस करी हुई है, बिजनेस मॉडल समझा है। होम क्रेडिट का पेरेंट के पास 50,000 करोड़ कैश है। पेरेंट इज अ कॉन्ग्लोमरेट एमएनसी है जो 9 कंट्रीज में ये सेम बिजनेस करती है, राइट। सो होम द पेरेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। पेरेंट ने बहुत सपोर्ट किया हुआ है होम क्रेडिट इंडिया को। होम क्रेडिट इंडिया के पास आज 650 करोड़ कैश है और 500 करोड़ अनयूटिलाइज लिमिट्स है। सो 700 करोड़ के डेट के सामने 1100 करोड़ के उसके पास ऑलमोस्ट कैश अवेलेबल कैश है। सो एंड हम 15 महीने का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सो वाइल ट्रिपल बी प्लस रेटेड कंपनी है, वो ट्रिपल बी प्लस इसके लिए क्योंकि वो कंज्यूमर फाइनेंस में है, न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स को लोन देता है, तो उसकी एनपीएस हाई होती है। बिकॉज ऑफ दिस उसकी रेटिंग ट्रिपल बी प्लस है। बट आप फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखोगे तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंट का सपोर्ट भी है। सो यू नीड टू, सो वी लुक एट अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। सो हमें लगता है 12% रिटर्न के लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे हमने रेटिंग मेंशन करी हुई ट्रिपल बी प्लस क्रिसिल रेटेड, बिकॉज इट इज अवेलेबल। इन सम केसेस इट विल नॉट बी अवेलेबल, सो हम नहीं मेंशन करेंगे। Okay. So my next question, so Ashish, next question is what I have also written Yes. just now. So why do you think that high yield fixed income products have edge over debt products like credit funds? Right. So again, 4 या 5 रीजन है जो मैं सोच सकता हूँ। सो एक है कि डेट फंड्स ब्लाइंड पूल है, राइट। सो व्हेन आई से ब्लाइंड पूल है, मतलब अगर आपको पता नहीं, आप आपके पैसे फंड मैनेजर को दे रहे हो और वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहा है। सो अभी वो वोडाफोन का पेपर लिया, डीएचएफएल का पेपर लिया या टाटा रिलायंस का पेपर लिया, वो आपको नहीं पता। सो राइट, सो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो आप जब डेट म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट कर रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस केस, हमारे केस में ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि आप पैसे किसको दे रहे हो और कहाँ जा रहा है। So clarity is, I think, one thing is different. Second, historically, debt mutual funds are also investing in high yield debt paper. तो आपका रिटर्न 7-8% है। दूसरा नुआंस है उसमें रिटर्न क्यों कम होता है, बिकॉज 25% of money in the fund they need to keep it as cash, because they need to give if liquidity, redemption is कभी भी हो सकता है। So वो लोग 25% कैश रखते हैं। बिकॉज वो 25% कैश रखते हैं, ओवरऑल फंड का रिटर्न कम हो जाता है, बिकॉज 75% इज अर्निंग, जो भी डेट पेपर इन्वेस्टमेंट है वो अर्न कर रहे हैं, बाकी 25% कैश है वो कम हो जाता है, एंड उस पर रिटर्न तो और भी कम होगा। सो पोर्टफोलियो रिटर्न फिर कम मिलता है। इसके लिए डेट फंड्स आप यूजुअली देखोगे कि कम रिटर्न दे रही है, राइट। थर्ड रीजन है कि यहाँ पे आपके पास एक मार्क टू मार्केट रिस्क है। सो डेट फंड्स क्या करती है, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट्स, ऑब्वियसली वो फंड की एक एनएवी निकलती है और वो एक वैल्यू निकलेगी। Now it is possible that, which is your interest rate risk, that when interest rate goes up, funds की NAVs will go down because the underlying bonds, then get lower in value, and that can lead to a capital loss. So आपने डेट फंड में इन्वेस्ट किया है और आपको एक कैपिटल लॉस हुआ। हमारे प्रोडक्ट्स में यू होल्ड टिल मैच्योरिटी, सो आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगी ओवर अ फिक्स टेन्योर। सो इन डेट म्यूचुअल फंड मैंने आज पैसा डाला और 12 महीने बाद पैसा हमें निकालना है। लिक्विडिटी ऑप्शन तो है, बट 12 महीने बाद अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गया है तो आपका एनएवी कम हो जाएगा, तो आपका एक्चुअली एक कैपिटल लॉस होगा इवन इन अ डेट म्यूचुअल फंड, राइट। सो these are the 3-4 things which I feel, overall returns obviously कम होती है, कैश रखते हैं 25%, मार्क टू मार्केट रिस्क होता है, एंड देन फाइनली एक ब्लाइंड पूल इन्वेस्टमेंट है। So I think because of these 3 or 4 things, investing in these fixed income instrument, returns are higher, specific opportunity है, fixed return है, and and obviously high yield or high return space.
So Saurabh, what would be the सॉरी, tax? एक और पॉइंट भी मैं मिस किया कि डेट म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियोज भी होते हैं, तो आपका रिटर्न फंड मैनेजर के एक्सपेंस रेशियो के वजह से भी कम होता है। सो दैट इज अनदर इम्पैक्ट जो हम हमारे केस में जैसे जो हम आपको डिस्क्लोज कर रहे हैं रिटर्न, वी डोंट टेक एनी फी ऑन दैट। हम जो भी फी अर्न करते हैं हम काउंटर पार्टी से अर्न करते हैं, तो व्हाट वी डिस्क्लोज इज व्हाट यू गेट, सो देयर इज नो फीस, देयर इज नो एक्सपेंस रेशियो, नथिंग बियॉन्ड दैट। So Saurabh, what would be the taxation? So Nishan, taxation is product dependent. So I'll say other than leasing, rest all में taxation is based on your respective income tax slab. So आपकी जो भी earnings है, they will be interest income for you or other income for you. So depending on the product. So if it's income, because it will be treated as interest income for you, you will pay tax based on your tax slab. So आप 10, 20, 30% जो भी ब्रैकेट में आपको टैक्स उस हिसाब से देना पड़ेगा। लीजिंग में इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग एक कंपनी बनाते हैं एंड देन एक जैसे हम एक एलएलपी बनाते हैं, सारे रिटर्न्स जो भी रेंटल्स आते हैं वो एलएलपी में आते हैं, वो एलएलपी टैक्स भरता है और फिर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इन लीजिंग जो पैसा बैंक अकाउंट में हिट होगा, दे आर टैक्स फ्री एंड पोस्ट टैक्स रिटर्न्स, सो देयर इज नो फर्दर टैक्स ऑन दैट बिकॉज कंपनी ने टैक्स भर चुका है। So other than leasing, in leasing you should check post-tax returns because the return that you get in the bank account is tax-free. क्योंकि LLP से distribution and share of capital or share of profits is not taxable. But rest 4 products, the tax will be as per your income tax. Okay, okay. So Saurabh, since Giraffe is relatively very new company, so why should MFDs trust you for their clients' money? Right. Hey, this is a very good question, Nishan. So see, I think first thing is that trust can't be built overnight, right? So हम लोग though हम लोग new है, we are not looking to get trust of participants here or our customers out there overnight. So we know that हमें आगे 10 साल काम करना है, 20 साल काम करना है, हम तो कंपनी बना रहे हैं for the long term, right? So if you can see हमारे पेज में minimum investment size is 1 lakh rupees. So what I request every individual is that you start very small with Giraffe. You test us, you try us, you experience us with a very minimum corpus and give us that opportunity. And then I hope that we are able to earn your trust and get that comfort over a period of time. So day zero से ट्रस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे हम लोग को फास्ट ग्रो करने का कोई interest nahi hai. We are happy to spend time to give comfort to partners and customers and happy to grow together. So that is one. Second, I think 2 or 3 things jo mujhe lagte hai ki Giraffe does well. We are a team of experienced professionals. All our leadership team has more than 10-15 years experience in the asset corporate finance industry. So we understand this space well. We are coming with great backgrounds, pedigree and integrity, and we feel that we bring the same to the business. And I hope everyone gets to see that. So we feel that the quality of the products that we bring is much better than that is out there in the market. So so our team is one reason. Second is in the we are trying to be the most transparent and credible platform. So as much data that you need हम आपको देंगे। आपको वन ऑन वन हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करना है, आपको ग्रुप में हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करना है, हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए हम टाइम देंगे टू एक्सप्लेन रिस्क, to disclose all facts and information that we have, and we can only assure that we will be transparent and open. So these are the 2 things that I want to highlight. So our experience and background, and we are striving to be as transparent as possible. And आप start small, 1 लाख से हमें try कीजिए, and then as and when you get comfort आप आपका portfolio बढ़ाते सकते हैं। So Saurabh, how can MFDs empanel with you, and what are the fee structure associated with, and what kind of commission they would get from this tie-up? So empanelment process simple है. So we have a team which will manage relationships with all our channel partners. So I can leave it, or we can circulate an email with all the contact details later. But हमारे पास support@giraffe.com है, या website पे एक number है, कोई भी call कर सकता है. So the
you know the process is simple. हमारे पास एक empanelment form है, उसमें कुछ आपकी details चाहिए, आप वो empanelment form भर के sign करके हमें दे दीजिए and you get empaneled with us. हम अपने database में आपको register कर लेते हैं and after that every communication about opportunities जो Giraffe you know जब list करती है, launch करती है, आपको मिलते रहेंगे and then we can have sessions individually to explain you know products and risks associated with opportunities. So the empanel process is simple. कमीशन स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स और टेन्योर्स डिफरेंट है, आप देखोगे कुछ 30 दिन का है, कुछ 30 साल का है, तो हम एक स्टैंडर्ड कमीशन स्ट्रक्चर नहीं रख सकते. सो ऑल आवर कमीशन इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. So I would request everyone who's attended this to come and you know talk to our team and see what is the commission structure. But I can tell you it is better than any other asset class or product out there, and we will be very again transparent in what we offer for every opportunity. So हमारे team के साथ interact कीजिए, they will be able to explain this better. But it goes as high as 3% you know for some of the products that we do, the commission structure. Okay. So Saurabh, let me take some questions from audience as well. So which are not covered, of course. So who do you get NCDs rated by? So who are your competitors? And you, what kind of historical default in these instruments? Okay, so do we have any example of historical defaults in these kind of instruments? Right. So as a digital platform, yeah, जो individuals participate कर रहे, we are I will say one of the pioneers. तो 2-3 competitors हैं, so one that has a question. But basically ये सारे products NBFCs या banks कर रहे थे, right? Inward discounting, corporate debt, leasing, NCDs, ये सब banking products है. हम basically उसमें पहले कस्टमर्स बैंक्स में पैसे रखते थे या सेविंग्स बैंक्स आगे जाके कॉर्पोरेट्स को लेंड करते थे. अब हम भी बोल रहे हैं कि मिडिल लेयर्स की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये कॉर्पोरेट्स को लेंड कर सकते हो, राइट? सो द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसी इज व्हाट इज प्रोबब्ली हिस्टोरिकल डेटा हियर. सो आई वुड लुक एट सम well managed banks and NBFCs to look at historical defaults to manage at a large scale. तो आप HDFC, Kotak, Bajaj Finance ये सब को देखोगे, which I will say are good pedigree banks and doing business in the right way. You know, defaults are less than 1.5% net NPLs, right? So that is the historical numbers. In our short journey of 6 to 7 months, we have done transaction volume of, I said, around 160 crores. 30-35 crores we have returned to our investors. Till now, we have not seen a single delay in any of our committed repayments. But yeah, I told you that is a historical benchmark, and this is the reality with us as of today. Okay. So M. Kumar wants to understand whether these instruments are listed on any market security. Yeah, so what we do is ये जो debentures है, at least ये debentures हम डीमैट कराते हैं. तो ये डीमैटेड debentures आपको आपके डीमैट अकाउंट में दिखेंगे. इनमें से कुछ लिस्टेड होती है डिपेंडिंग अगेन ऑन प्रोडक्ट एंड इशू साइज कितनी बड़ी है, बिकॉज लिस्टिंग में फिर फिक्स कॉस्ट होते हैं. सो अगर छोटे इशू साइजेस में हम फिर लिस्टिंग नहीं कराते, बट अगर इशू साइज डिसेंट है तो फिर ये लिस्टेड होंगे बीएसई एनएसई में. सो माय रिक्वेस्ट इज आप फिर एवरी अपॉर्चुनिटी देखना, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट देखना. सो वी विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट. अगेन ये लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, बट ऑल ऑफ देम हम सिर्फ डीमैट करते हैं. एंड बिकॉज ये डीमटेरियलाइज है, सारे एनसीडीज आपको आपके डीमैट अकाउंट में दिखेंगे. इनवॉइस एंड लीजिंग दे कांट बी लिस्टेड एज अ प्रोडक्ट. इन लीजिंग आप एक शेयर होल्डर हो कंपनी का या पार्टनर हो कंपनी का, तो आपको सारे कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे. एंड इनवॉइस में आपको बेसिकली अग्रीमेंट्स होंगे. So they are not instruments which can be listed. Okay. So Nitin wants to understand what is the worst case scenario. So I guess you should diversify, Nitin, across various assets so that risk can be mitigated. Tushar wants to understand about taxation that you have already, covered. So Tushar also wants to understand whether NRIs can invest in these products. So in leasing and invoice discounting, NRIs can invest easily. In the rest of the instruments जो NCDs है, वो अगर listed हुए तो NRIs invest कर सकते हैं, unlisted हुए तो नहीं कर पाएंगे. Because laws are clear कि unlisted debt securities में NRIs can't invest.
तो लिस्टेड हुए तो कर पाएंगे, बट लीजिंग में बिकॉज यू आर अ शेयर होल्डर, equity investments for example, NRIs भी कर सकते हैं. अभी हम as Giraffe only investments from NRO accounts ले रहे हैं, NRE अकाउंट से नहीं लेते बिकॉज फिर NRE अकाउंट्स FCGPR फाइलिंग, बहुत सारे फाइलिंग होते हैं जो फिर बहुत कम्बरसम होता है हमारे लिए मैनेज करना. तो हम अगर कोई भी NRI NRO से इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर इनवॉइस डिस्काउंटिंग और लीजिंग में कर सकता है वेरी इजीली. फॉर द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स हमसे चेक कर लेना, अगर हम वापस बता देंगे अगर अपॉर्चुनिटी टू अपॉर्चुनिटी अगर वो लिस्टेड है तो कर पाएंगे. So Mandar wants to understand how are you different from existing such platforms like Wind, Weather? Right. So like I said, 2 या 3 कॉम्पिटिटर है, विंड तो उनमें से एक है. आई थिंक हम डिफरेंट ऐसे है कि हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और बहुत चॉइस दे रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स को. तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको 30 डे का भी प्रोडक्ट मिलेगा, आपको 3 इयर्स का भी प्रोडक्ट मिलेगा, आपको एक 10% का भी प्रोडक्ट मिलेगा, आपको 20% का भी प्रोडक्ट मिलेगा. सो आपके पास पूरा चॉइस है. आप आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के कंफर्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो. मोस्ट अदर प्लेटफॉर्म्स आज जो मार्केट में है, एंड मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो लोग एक टाइप का प्रोडक्ट करते हैं और उस टाइप के प्रोडक्ट में एक ही टाइप का रिस्क होता है. तो आप उस प्लेटफॉर्म पे डाइवर्सिफाई करोगे तो आप रिस्क डाइवर्सिफाई एक्चुअली नहीं कर रहे हो. And so you should not only diversify across investment but also products, ताकि आपका रिस्क ट्रूली डाइवर्सिफाई हो. और यहाँ पे आपको बहुत चॉइस मिलेंगे, आपको पूरा रेंज मिलता है टू चूज एंड डिसाइड आपको किस में इन्वेस्ट करना है. सो आई वुड से दैट इज हाउ वी आर डिफरेंट. So Mohsin Bijepuri wants to know that these are very high risky products, and many HNIs have ability to digest these kind of risk. But what about retail investors? Yeah. So ये high risk, right? I think हमारा एक व्यू उसमें है कि I think corporates को जब आप lend कर रहे हो, if you do the credit and risk assessment well, and if you have the right integrity and intent, फिर corporate lending is not very difficult, right? So हम और हमारा strength है origination में, like I said, structuring में, business समझना, credit and risk assessment. So I feel that we do a good job in bringing the right opportunities and mitigating risks in the right way. So while these seem highly risky and HNIs invest, and HNIs भी इसलिए invest करते हैं because historically उन लोग they have made money by investing in these products. So because they have made money, they continue to invest, right? So retail investors, why they were didn't invest was because ticket size बहुत high था. तो typically ये सब में 1-2 crore होती है, क्योंकि wealth distributor है, MFDs आप भी छोटे investors के पास जाते नहीं थे to these product because didn't make sense. तो अभी हमने minimum investment 1 lakh कर दिया है. Second, retail investors समझते नहीं थे ये products को, because of which they did not invest. अभी we as a platform हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर इन्वेस्टर को समझाए, हर पार्टनर को समझाए कि ये प्रोडक्ट क्या है, रिस्क क्या है, एंड आप घर पे बैठ के थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म 5 मिनट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. पहले आपको कहीं पे फॉर्म भेजना होता, किसी से बात करनी होती, ट्रांसपेरेंसी बहुत लो रहता था. आज एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वी आर फुल्ली ट्रांसपेरेंट. यू कैन फिनिश योर इन्वेस्टमेंट इन 5 minutes एंड वी आर हियर टू हेल्प. सो and on the risk, as I mentioned, that I think कि अगर हम right intent के साथ correct assessment करें तो I think to a large extent risk mitigate हो सकती है. Obviously, like I said कि हम भगवान तो है नहीं, कुछ गलतियां करेंगे, 1 या 2% डिफॉल्ट हो सकती है, बट उसके लिए हम बोलते हैं कि प्लीज डाइवर्सिफाई करो और एक अच्छा पोर्टफोलियो. Okay. So Saurabh, Dipesh wants to understand whether in leasing arrangement do you get the benefit of depreciation? Yes. So the asset जो है वो कंपनी में बिलोंग करती है, तो कंपनी लेवल पे हर रेंट इनकम होता है और उस इनकम के ऊपर हम डेप्रिसिएशन बेनिफिट क्लेम करते हैं. उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो हम टैक्स पे करते हैं और फिर लाइक आई सेड पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टर्स को मिलती है. तो हम डेप्रिसिएशन बेनिफिट यूटिलाइज करते हैं. Okay, and Kuldeep wants to understand what the LLP. So you have mentioned about the taxation in leasing. Yeah. So Kuldeep, what happens is LLP pays tax at fund level, and investors would not require to pay any taxes.
It works like जैसे पहले आज तो लॉ चेंज हो गया है, बट पहले जैसे डिविडेंड काम करता था 5 साल पहले डिविडेंड वाज नॉट टैक्सेबल एट द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर, क्योंकि कंपनी टैक्स भरते थे और फिर प्रॉफिट से डिविडेंड पे आउट करते थे, तो द डिविडेंड एट द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर वाज नॉट टैक्सेबल। वो प्राइवेट लिमिटेड में अब आरबीआई ने चेंज कर लिया है, बट एलएलपी में वो वैसे ही कंटिन्यू करता है कि एलएलपी ने एक बार टैक्स भर दिया है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स that the LLP pays to the partners are not taxable. So what's the LLP? So this is the last question because we already ran out of time. Yes. So what's the LLP tax and what would be the so I guess you have already answered this. So I've given, yeah, okay. So what about P2P versus your product difference? Quickly. So peer-to-peer मैंने पहले touch upon किया था. So I think the first thing is peer-to-peer में individual as an individual आप किसी और individual को पैसा दे रहे हो, right? So और ये जब P2P platform में आप पैसे दे रहे हो, आप कुछ हजार individuals को दोगे, आपको actually पता नहीं कि पैसे किसके पास जा रहा है, और वो की difference है. आज आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो जहां पे आपको पता भी नहीं कि पैसे किसको जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि वो हाई क्वालिटी बोरोवर है, ABCD है, बट यू नो व्हाट इज उसमें 10% वो है या 80% वो कैसे है, वो क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, राइट? स्पेशली फिर सेकेंड चीज में जैसे अगर एक कोविड सिचुएशन हुआ या यू नो इकोनॉमी डाउन जा रही है, सो इन P2P दिस ऑब्वियसली इम्पैक्ट इन एनी कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस इज वेरी हाई, राइट? सो आपको वो सब रिस्क देखना चाहिए. P2P is also an alternate product, so please evaluate it, but that is the difference. There you don't know where your money is getting invested, and you as an individual is giving money to many other individuals. In our case and these instruments, you as an individual is lending to corporates. You know कि ये corporate की balance sheet क्या है, ये corporate का business क्या है, corporate करता क्या है, you exactly know कि आप इसको पैसे दे रहे हो और आपको इस business model से पैसे वापस मिलेंगे. So I think that transparency is much better, and that is the key difference. Okay, so with that we have come to an end to this interesting session. Thank you so much, Saurabh, for your valuable time and input. Thank you. And finally, I thank each one of you for being such a wonderful audience. Yes, Saurabh, you were saying something. No, thank you everyone for joining in. I hope the session was informative, and हम है आपके सारे answers, questions के answers देने के लिए. So हमारे Giraffe platform पे 2 मिनट लगता है KYC करने के लिए, तो while आप you know as partners empanel कर सकते हो, तो I would request कि giraffe.com, which is JIRAAF, आप this is the spelling, giraffe.com पे जाइए, आपको 2 मिनट लगेगा रजिस्टर करने के लिए. एटलीस्ट आप अपडेटेड रहोगे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड we will be definitely we will then get in touch with you you know to empanel and collaborate. Great. Thank you so much everyone for it. Great. So Jay, you will hear from Giraffe team. Don't worry, all the panelists will hear from Giraffe very soon. Thank you so much. Thank you, Nisha. Yeah. Bye. Bye.